वेलकम वेलकम. सबसे पहले सवाल ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि विशाल आपको जाएगा. आई होप यू रेडी विद योर माइक एंड द क्वेश्चन इज Still, मर्डर ऑन टीवी. ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये आइडिया 6 साल से मेरे पास still, था एंड बहुत सारे लोग के पास गया था कि लाइक दिस इज़ अ न्यू स्क्रिप्ट, दिस इज़ अ न्यू आइडिया. तो जिस तरह से बोला गया, अरे यार ये क्या आइडिया है क्या, बहुत सावधान इंडिया देख रहा है तू. सो आई लाइक अच्छा. तो पहले तो वो स्क्रिप्ट नहीं थी. तुमको ये जो बोल रहा है मुझे बहुत सावधान इंडिया देख रहा है, ये खुद ही देख रहा होगा एक्चुअली. सो दैट्स द रीज़न उसको ये आइडिया आया कि मैं बहुत देख रहा हूँ. सो लाइक व्हाई नॉट शो समथिंग कि बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये लोग जो भी टीवीज देखते हैं दे वांट टू सी व्हाट दे वांट टू सी. इट्स लाइक जो चैनल दिखा रही है वो लोग वो देख रहे हैं. आई कांट, अगर मैं स्किप भी करूँ आई सी सम अदर शो. सो मेरे को ठीक है, ऐसे कुछ करता हूँ कि जो मुझे दिखाना है दे विल सी इट. सो उसमें से मैंने हम लोग ने, मी एंड माई राइटर मिस्टर समीर अरोरा, ही भी एक कॉन्सेप्ट बनाया है जहाँ पे जाना चाहो तो भी जा नहीं सकते, आपको देखना ही पड़ेगा. So that's the concept we have made. It's a live murder on TV, witnessing a live murder. It looks fantastic and I can't wait to see this film. Thank you, Congratulations thank you. already. That's Thank you. fantastic. All right, Sana, अगला सवाल तुम्हारे लिए. How lucky are you? Debut में एक नहीं तीन heroes. How does that make you feel? Well, it's taken quite long to reach here, and I'm very, very grateful to Vishal and T Series for believing in me, especially when you lose the belief in yourself. I think that's very, very important to give me back the confidence that I lost somewhere. And I'm very excited, as you can see, I've given my heart and soul to Vajah Tum Ho. And definitely, the way the responses are coming, that will be my reason. Like, it will definitely be something that I'm going to cherish all my life for sure. Absolutely. Give it up for the gorgeous Sana Khan, please. आपने कहा कि कॉन्फिडेंस गेनिंग इज इम्पोर्टेंट. मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपको देख के बहुतों में कॉन्फिडेंस आ जाएगी इस फिल्म से. शुरू हो गया है. Oh yeah, na? I thought as much. Sharman, my next question is for you. Okay, I've seen you do so much before, but this is the first time you're playing a cop, and a very sexy cop, if I may say that. मैं बोल सकती हूँ ना ऐसे, ठीक है ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? ठीक है. तो मैं जानना चाहूँगी, how was your experience trying to play a cop for the first time? Yeah, again, actually, full credit to Vishal and Bhushan, for again having the foresight and having the belief in the script, their belief in the actor that he'll be able to pull off something that I've never done before, like you mentioned. A cop is not someone, a character that people generally see in me, by virtue of the perceptions I've created by the characters I've played. But this particular role that Vishal wrote for me, he had promised me in Hey Suri 3 that now the next film that I make, I'm going to give you a role that you'll really thank me for. And that's the kind of role I have in this film. It's really exciting. It's a great mixture of quiet aggression with a lot of sense of humor that this particular character has. And it's been an absolute joy performing this. Also because of the nuances that Vishal as a director brings in for the actor and, ups the challenge for you. So it's all in all been a great experience. इनफैक्ट आपका लाइन है फिल्म में, आप कहते हैं कि मुझे भी मज़ा आ रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लगा while playing this role भी आपको बहुत मज़ा आया. I really had a great time, truly. Fantastic. Sharman Joshi, ladies and gentlemen, please put your hands together. Our next question, television के सबसे respected राम को यानी कि गुरमीत को. Hi Gurmeet, how you doing? I'm good, how are you? I'm good. Thank you so much for joining us today. Your film looks great, by the way. And of course, राम से ये super erotic thriller. काफी डिस्टेंस कवर कर लिया आपने. बिल्कुल. एक्चुअली जब सोचता हूँ कि पहला शो जो था वो राम था, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अलग है. लेकिन ये भी बहुत मानना ज़रूरी है कि एज एन एक्टर आपको हमेशा अलग अलग किरदार करने को मौका मिलना चाहिए. और मुझे लगता है कि राम के बाद अगर कुछ अलग करने जा रहा हूँ, वो मैं विशाल को थैंक्स कहना चाहूँगा, टी सीरीज़ को थैंक्स कहना चाहूँगा कि जिस कंटेंट को हम कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा. That's great. Thank you so much. The connection with television is really strong. I want to say that. That's pretty fantastic. Rajneesh, hi, how are you doing? Good, how are you? Good, I'm good. I'm just a little weak in the knees because you're so good looking. Can I get a seat, please? Can I get a chair for you? How was your experience? Please मुझे बताइए. My experience has been superb. I think firstly, again, I'd like to thank Vishal for this because I've never played a negative role before. And this is a very, very grey zone for me.
You know, usually people associate me with maybe a positive, sweet, good-looking, वो boy next door. शादी कर ले तुझसे। हाँ, मतलब वैसा वाला, वो Raymond's वाला feel आता है। हाँ जी। So, with this role, I think this was purely Vishal's, you know, vision, and he said, "Ki, you know, listen to it, and if you like it, then you know, I'd like you to come into it." And I loved it when I heard the script, when I heard my role, and purely this is Vishal's thing that you know I got into it, and thank you so much, sir. Thank you for doing it. And I loved every bit of doing Wajah Tum. That's great. Thank you so much. तो बहुत सारी वजहें जो हैं आपने हमें दे दी हैं आज इस स्टेज पर. But I must say this, and it wasn't really planned, but I must say this. The music is outstanding. There are some songs जिन्हें सुन के ही लोगों में मतलब सीटियाँ तालियाँ फूटने लगी. Vishal, anything that you want to tell us about the music? Actually, I just want to thank Bhushan Kumar for this because I don't think so. जब मैंने Hey Story 2 की थी तब नॉलेज इतनी थी म्यूज़िक की. Hey Story 3 की तो थोड़ी बड़ी उनके साथ बात करते करते, और वजह तुम हो में काफ़ी कुछ बड़ी है. पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी. उन्होंने ये बोला था कि लाइक मेरे को सर आई थिंक 100% यू नो एवरीथिंग अबाउट द म्यूज़िक. कि नहीं विशाल, मैं 95% नहीं रखता, मैं 90% रखता हूँ, क्योंकि अभी 100% बोल दूंगा तो मैं बेस्ट लेके नहीं आऊँगा. सो कहाँ ना कहाँ 5 या 10% मैं हमेशा छोड़ देता हूँ कि एवरी फिल्म मैं प्रूव करूँ. आई थिंक इट गोज़ विद टी सीरीज एवरी डिपार्टमेंट. वो लाइक PR हो, लाइक विनोद भानुशाली हो या भूषण कुमार हो या एवरी वन, द प्रोडक्शन, अजय कपूर, द वे दे डू इट, इट्स फैंटास्टिक. Absolutely. Thank you so much for that. And of course, हमारी जो press and media लोग हैं यहाँ पर. Hi guys, it's time for you. It's open for questions. Are you? अगर पहले से प्रिडिक्ट करता तो मैं अभी से सक्सेस पार्टी कर लेता, बट वो तो मिलना मुश्किल है. वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा. बट वी नो कि हम लोग ने बहुत ही एक नया कंटेंट बनाया, नई स्टोरी है जिसमें सबके जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मैं टेक्नीशियन की बात करूँ, चाहे एक्टर्स की बात करूँ, अभी जो PR है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सबकी मैं बात करूँ, सब ने अपना 100% दिया है. सो आई थिंक ऊपर से वुड लाइक टू टेल यू, अभी जैसे हम लोग एंटर हो रहे थे पता चला कि बैक हैंड से पता चला कि वी हैव क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज़ इन 7 आवर्स, एंड दैट्स ह्यूज. सो आई थिंक कहाँ ना कहाँ अभी ये आंसर मिल ही गया अभी आप लोग को भी. अच्छा सना, अभी तक तो लगा था कि विशाल की फिल्म से जरीन खान ने बोल्डनेस की साथ सारी हदें पार कर दी थी. अभी ट्रेलर में दिखा काफी आप बोल्ड नजर आए, कुछ कहेंगे आप? आई थिंक जो भी फिल्म है, it's a film. Obviously, it's a fantasy that you're living with every film that you watch. So I always feel that actress has to be pretty and desirable. Then comes acting, which is very important depending on what role you play. And boldness की सारी हदें तो मैंने पार नहीं की. ऐसी कुछ फिल्में अभी रिलीज हुई है जहाँ पे पूरी हदें पार हुई है. But I think in that ground I'm still very shy. And I think इतना कुछ तो if you want to become an actress, इतना open होना बहुत ज़रूरी है. Otherwise, I can do a religious film if I'm not open to this. विशाल, hi, कमल here from E24. Hi. Yeah. विशाल, आपसे जानना चाहूँगा कि Hate Story 1, 2 and 3, erotic romantic, अभी ये erotic thriller movie है आपकी. तो ये क्या आपका एक जो प्लान है कि erotic ही बिक सकता है मार्केट में? Means like erotic ही आप बेच सकते हैं, आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं. तो क्या ये वजह रही कि आप erotic ही मूवी करते हैं? नहीं, वो वजह नहीं रही एक्चुअली. पहली बात, सबका एक जॉनर होता है. तो इनिशियली मैं अपना एक जॉनर बिल्ड कर रहा हूँ कि लाइक अब्बास मस्तान है, सबका एक जॉनर है. तो हम जस्ट बिल्डिंग अप द जॉनर. और रही इरोटिक ही चल सकती है, और कोई बना नहीं रहा है, और कोई बनाएगा तो मैं दूसरी कुछ बना लूँगा. तो हम जस्ट एक रेस जो होती है और एक कॉम्पिटिशन में छोड़ के जा रहा हूँ कि या फिर मेरे से बनाओ या मेरे से ऊपर बनाओ. क्या एक हॉलीवुड का फ्लेवर भी इसमें देखने मिल सकता है? सॉरी, हॉलीवुड जो हॉलीवुड फ्लेवर रहता है, क्या आप इसमें हॉलीवुड फ्लेवर भी डाल रहे हैं इसमें? सी एक्चुअली मैं ही बोलूँगा कि मैं हॉलीवुड डाला हूँ तो कोई मानेगा नहीं. इट्स अबाउट द ऑडियंस टू सी एन से क्या है हॉलीवुड फील आ रहा है. और आज जब से ट्रेलर सुबह से लॉन्च हुआ है, काफ़ी मैसेजेस FB पे, ट्विटर पे ये तो दिख रहा है कि इट्स अ वेरी हॉलीवुड फ्लेवर दिख रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. सना, आपसे जानना चाहूँगा कि वजह तुम हो, क्या वजह रही इस फिल्म को करने में आपकी? I think बहुत सारी वजह थी, but I think सबसे important वजह was to be a part of a right project. I think after my last film, the cameo that I played, I think I have waited for 2 years. और जब इंसान 2 साल तक वेट करता है तो डेफिनेटली वो कोई राइट प्रोजेक्ट के लिए ही वेट करता है.
एंड जब मुझे पता चला और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, आई थॉट कि जो मेरा 2 साल का वेट था, इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ वेटिंग. और ये फिल्म डेफिनेटली एक धमाकेदार फिल्म होगी, ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव विशाल ऑन बोर्ड. एंड जब आप कोई फिल्म साइन करते हो, आप ऑब्वियसली सोचते हो कि कैसा होगा. एंड विशाल की दोनों फिल्में हिट थी, तो कहीं ना कहीं अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि ये भी कहीं ना कहीं हिट होगी, और हिट होना सबको पसंद है. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. और फर्स्टली फुल फ्लेजेड हीरोइन हूँ मैं इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड, सो यू कैन सी दैट इट्स माई इंट्रोडक्शन फिल्म. एंड या, I hope the journey goes good from here. क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है सुबह से अभी तक? कॉम्प्लीमेंट ही मिल रहे हैं. कुछ खास कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला है इस मूवी की ट्रेलर को देखकर? शर्मन, आप विशाल से काफी दिनों मतलब स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं स्टोरी से, तो इस मूवी में क्या खास रहेगा आपके किरदार में, और किस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, अगर थोड़ा बता सकें? जैसे कि हमने एक्चुअली शुरुआत में बात की थी, इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ और पहली बार निभा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ बहुत दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण है. सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और क्वाइट एग्रेशन भी है. और बंदे की इस फिल्म में एक छोटी सी बेटी भी है. तो अनफॉर्चुनेटली इस बारी एरोटिका का जो स्पेस है वो मेरे नसीब नहीं आई है, शायद अगले साल. गुरमीत, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी वाइफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इस बारे में? बिल्कुल, मुझे लगा था कि आज पिटाई खाने वाला हूँ. सुबह जैसे उठा तो मतलब आप देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद हंगामा स्टार्ट हो गया था, तो मुझे लगा कि घर पे हंगामा होगा कि नहीं. मैंने देबीना को दिखाया, और सच बात मैं बता रहा हूँ आपको, देबीना का रिएक्शन यही था कि गुरमीत हिट है ये. और जब बीवी के ज़बान से ऐसी बातें आती है तो मुझे लगता है कि बहुत दिल में बहुत खुशी होती है. इनफैक्ट मैंने विशाल को भी ये बात कही. एक्चुअली कभी बेबी या गर्लफ्रेंड उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करती. वो जब रिएक्शन आएगा धीरे-धीरे वो एक reaction हफ्ते आते बाद हैं. आएगा, कल आएगा या रिलीज के बाद आएगा, पर आएगा जरूर. वैसे रिएक्शन थोड़े धीरे तो अभी खुश होना है तो खुश हो जा. अच्छा, कुछ टाइम है खुश होने के. सब साइलेंस हो गए. Shalman, hi. Hi, I'm Kanika from iCarme. So आपको अभी 8 Story 2, 3 में देखा गया था, काफ़ी मतलब आपका स्टीमी रोल रहा है, but you know we have never seen you, I mean not never, काफ़ी टाइम से आपको कॉमेडी जॉनर में नहीं देखा है, and people are missing you on screen and fan of yours. So when can we expect that? Soon actually, we just begun shooting for a film, and hopefully next year sometime. Sana is also part of that movie. You'll see it soon. So what is the name of the film? You will We're reveal talking later. about Wajah Dunga tonight. Today, sorry. Okay. So Gurmeet, या हाय. So आपको मतलब जब आप सीन्स कर रहे थे, देवीना को तो पता ही होगा कि आप ऐसे कुछ सीन्स का स्टीमी सीन्स है फिल्म में, तो आपको काउच पे नहीं सुनाया उन्होंने कभी? अगेन मी. क्या वापस बोलिए. काउच पे नहीं सोना पड़ा आपको जब आप ये शूटिंग कर रहे थे? नहीं, जब मुझे स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले मैं उनको दिखाता हूँ. मैं पूछता हूँ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. जब से ही वो बोलती हाँ, तब मैं कर लेता हूँ. झूठ. जोक्स अपार्ट, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं यार. मैं बहुत लकी हूँ कि देबीना भी इसी इंडस्ट्री से है. वो बहुत समझती है, क्योंकि अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी आपको समझाने में या समझने में. तो इन दैट केस आई थिंक हम लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों तक साथ में रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं. Sana, Justin here. Sana, was there any apprehension while doing bold scenes? Because considering if not done right, they might end up looking cheap. So was there any apprehension in you while you were doing those scenes? Of course, it was there. Even before when I signed the film, I knew that there's going to be some hot scenes in the film, which was making me very nervous and giving me some sleepless nights. And जब हम शुरू करने गए shoot, and I got to know like one day before that tomorrow we'll be doing it. Obviously, I was very nervous, but I think it's very important that people you're working with you make you feel very comfortable firstly, which is definitely Vishal, Gurmeet, and of course my DOP also plays a very important role because he's the one who's going to film me. So I don't know what is the frame that he's going to set me. How am I going to look? Am I going to look nice? And it's a very thin line, you know, between looking sensuous and looking vulgar. But मुझे इतना पता था that I'm going to look very sensuous. Vishal is pro in making girls look so beautiful,
And I can proudly say I have never looked this pretty in my life on screen. This is going to be like... Make boys beautiful. Thanks. You So are. yeah, I was like comfortable eventually. हो गया scene. I was just waiting कि हो जाए, but rightly होना बहुत ज़रूरी है. And especially हमने जितने भी ये scenes we've done it all in one take. So that's very important. Sana, any plans perhaps to show the film to even Salman Khan for that matter, take his reaction, considering that you guys good friends? Yeah, obviously I'm sure like everyone else is seeing it. I'm sure even he's gonna see it and वहाँ से भी good wishes आज आई है सुबह में. So I'm very happy. Oh, he wished you for the film? He didn't wish me yet, but Sohail wished me. So I'm sure once he sees it, he'll wish me. गुरमीत आशुतोष here. या हाय हाय जैसे कि आपके टीवी के ऊपर एक राम वाली इमेज थी, काफी मर्यादा पुरुषोत्तम वाली इमेज थी, यहाँ पे एक टोटली अलग ही इमेज नजर आ रही है. तो आप कौन सी इमेज को ज्यादा एंजॉय करते हैं? ऑडियंस भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी कि राम है या कौन? रावण है. बोल दीजिए, आप पूरा बोलिए. नहीं, एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो मेरा पहला शो राम था और उसके बाद मैंने गीत शो किया था जो कि अगेन बहुत ही पॉपुलर हुआ था. तो आप देखेंगे अलग अलग किरदार करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. और बात ये नहीं है कि राम और रावण की. एक्चुअली बहुत लकी हूँ कि अगर राम प्ले किया उसके बाद रावण भी करने को मिले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है एज एन एक्टर. बट आपको अगर पर्सनली Each one to his own, I guess, yeah. Whatever rocks your boat, whatever you think is exciting at that point of time, you go ahead and do it. And erotica is actually, it's a very fine line. Of course, this one is projected as an erotica. It is an erotica. But there are so many films that are presented out there which are not under the tagline of erotica, but there's more and beyond. So it's, I guess, everyone's choices. रजनीश, आपको एक फिल्म में सनी लियोनी मिल जाती है, एक फिल्म में सना खान. आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन है? म्यूजिक इंडिया से यहाँ पे Sunny in fact 2 फिल्मों में. So this was my second film with her. Yeah. And well, हाँ, so I think सब S वाले नाम आ रहे हैं. Sunny, Sana, and Mo maybe. But I think nahi, my wife obviously she understands that this is cinema, this is acting. This is not, you're not doing it in real life. And there are about 20 to 50 people standing there. So ऐसा नहीं है कि आप मजे ले रहे हैं. You're literally, you are performing it and you're performing it so that it's taken nicely. And it's as Prakash ji, so that the DOP, Mr. Prakash Kutti, so that all the DOPs can shoot it nicely. So there's a very thin line, and my wife understands that. Obviously थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो गुरमीत को धीरे-धीरे समझ आएगी. And तो Finally. yeah, मैंने बोला ना बाहर मिलते हैं. आज शाम को एक हफ्ते बाद होगी जरूर. ले लीजिए सर, ये आखिरी सवाल होगा आज का. प्लीज माइक पे बोलिए. 2-3 बाकी है अभी हमने शुरू किया. तो मेरा सवाल ये था कि सलमान आपसे बहुत ही क्लोज हैं. जब हिज स्टोरी देखी थी जरीन खान की, तो सलमान ने देखने के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया था. आर यू रेडी फॉर दैट इफ सलमान डिडंट लाइक? No, one second. I don't think he had criticized it. मैं No, था he did. पूरे process में. In fact, he had said that whatever उनसे works as a personally box पूछा office. भी हम लोगों ने. Personally उनको बोला नहीं, कि मुझे publicly पसंद नहीं मैं आया. बात कर रहा हूँ. Publicly तो हमें तो नहीं बताया था. आपको personally बोला होगा तो अलग बात है. अच्छा, आप ही से क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं. शर्मा, सलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन पूछ सकते हैं. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको एज एन एक्टर, हम बहुत ही सेंसिबल एक्टर जानते थे जब रंग दे बसंती और 3 Idiots देखा था. आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके की फिल्में आप करने को राजी हुए? कैसे कन्विंस किया? ये तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि इस चीज़ों के लिए मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है कि आपको राजी करना ऐसे फिल्मों के लिए. Why? आपको क्वेश्चन समझ? Work is religion for me. Work is God. हर किस्म का काम एज एन एक्टर इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी. हर किस्म की फिल्म की अपनी अपनी जगह होती है. हर किस्म की फिल्म का अपना ऑडियंस होता है. शायद किसी को इस किस्म की फिल्म पसंद ना हो और किसी को पसंद है, और बहुत लोगों को पसंद है. वो आपको हेट स्टोरी 3 के कलेक्शन से पता लग जाएगा. तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर, बाय द स्टोरी, बाय विशाल, एंड सो आई डिड द फिल्म. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's about it. We don't have time for questions anymore, but we do want to do a couple of photo opportunities at this point. Can I please request this really stunning cast with this really
Bye.